Good morning, students. I am Mayangar, your mathematics teacher. In the previous lecture, we studied about how to find a rational number between two rational numbers and representation of rational numbers on number line and some word problems. So, continuing from the previous lecture, let's take some other word problems. After word problems, we will revise the whole concepts that we have studied till now in rational numbers. I'll be taking some of the questions from rational numbers from the whole topic. So let's start first with the word problems. Write down question number 1. If the price of 12 shirts is the price of 12 shirts is rupees 3600 2 by 5 and price of 6 pants is rupees 3000 to 3 by 4. Find the price of 4 shirts and 4 pants. We have the price of 12 shirts rupees 3600 to 2 by 5 and price of 6 pants is rupees 3000 to 3 by 4. We have to find the price of 4 shirts and 4 pants. So let's start the word problem. We have done this kind of word problem in the previous lecture also. So first we will write price of 12 shirts is equal to rupees 3600 to 2 by 5, which is equal to 18,002 by 5. 3600 into 5 is 18,000. 18,000 plus 2 is 18,002 by 5. So price of one shirt equal to rupees 18,002 divided by 5 into 12. Reduce it with 2, 2 6 are 2 9s are 0 0 1. So it is rupees 9,001 divided by 5 6 are 30. It is the price of one shirt. We have to find the price of 4 shirts. So price of 4 shirts equal to rupees 9,001 by 30 into 4. 12 shirts price is this. One shirt price, we will divide this expression by 12. In order to find 4 shirt price, we will multiply this expression by 4. 2 2s are 2, 15s are. So it is rupees 18,002 divided by 15. Price of 4 shirts is 18,002 divided by 15. Now let's come to pants. Price of 6 pants equal to rupees 3,000 to 3 by 4, which is equal to rupees 12,003 by 4. So price of one pant equal to rupees 12,003 by 4 into 6. We have to find the price of 4 pants. So price of 4 pants equal to rupees 12,003 by 4 into 6 into 4. 4
4 gets cancelled out. This expression is getting divided by 3. So 3 2s are 3 4s are 12, 0 0 1. It is rupees 4001 by 2. Now this is the price of 4 pens. This is the price of 4 shirts. We will add both these expression in order to obtain final result. So price of 4 pants and 4 shirts equal to 18,002 divided by 15. 18,002 divided by 15 plus 4,001 divided by 2. LCM is 30. So 18,002 multiplied by 2. 36,004 plus 30 by 2 is 15. 4,001 multiplied by 15. 60,015. 36,004 ऐड कर दीजिए इसमें. 96019 divided by 30. So our final expression is 96019 by 30. If we divide it, we get the answer rupees 3200.63. So this is the final answer of price of 4 pants and 4 shirts. Let's take one distance time problem. Let's take a different problem. In the previous lecture, we calculated distance by knowing speed and time. Now in this question number 2, we have to find time and we have distance and speed given. Let's write down. A car is traveling with a speed of 50 to 2 by 5 kilometer per hour. How much time will it take to travel the distance of 200 kilometer 100 meter? Let's see the solution of question number 2 of this lecture. A car is traveling with the speed of this. So we have speed given, we have distance given. We have to find the time. First, let's convert mixed fraction into proper fraction. So we have speed 50 to 2 by 5 kilometer per hour. So this is 15 to 5, 250, 250 plus 2 is 252. 252 by 5 kilometer per hour. This is the speed. How much distance is given? Distance is 200 kilometer and 100 meter. So let's convert it into kilometer. It will be 200, this is the kilometer, plus 100 divided by 1000. We have 200 kilometers, so this is the 200 plus 100 meter. हम सबको पता है 1 मीटर में कितना होता है 1/1000 किलोमीटर. सो 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया मैंने, जिससे कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकूं. 2 zeros get cancelled out, so it will be 200 to 1/10, which is equal to 2000
1/10 kilometer. 200 plus 1/10 will be equal to 200 to 1/10, so it will be 2000 1/10 kilometer. Now we know distance equal to speed into time. So what will be time? Time will be distance divided by speed. We have distance 2000 1/10 and speed is 252/5. So it will be 2000 1/10 divided by 252/5. So 2001 divided by 10 इंटू, मैंने कहा था आपको अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. 5 1 5 2 जा. So it is 2001 divided by 252 into 2 is 504. Be 2001 by 504 hours. You can leave the answer in fraction. So these are some of the word problems that we discussed. Now let's take up some other questions from the whole chapter. This ends the concept of the rational numbers. Now we'll be taking some other questions so as to have more practice. Let's write down question number 3. What number should be subtracted from -3/5 to get -3? What number should be subtracted from -3/5 to get -3? Let's see the solution. So let number to be subtracted be x. Let number to be subtracted equal to x. अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. हम सबको पता है जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम से, तो फ्रॉम वाला पहले आता है और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बाद में आता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. सो -3/5 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं. सो आंसर विल बी -3/5 -x. जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है डेट इज x. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -3/5 में से. So -3/5 -x. What should be the result? -3. What number should be subtracted? X should be subtracted from this. So -3/5 -x लिखा to get -3 equal to -3. अब क्या करा? -3/5 -3 था राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और x को राइट हैंड साइड में ले गया, तो +3/1 इक्वल टू +x. -3/5 -3 था RHS में, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो -3 का +3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -x था तो उसको राइट हैंड साइड में x ले गया. 5 और 1 का LCM इज 5. 5/5 इज 1. 1 into -3 is -3 plus 5 divided by 1 is 5. 5 into 3 is 15 equal to x. So 15 minus 3 is 12/5 equal to x. Therefore, number to be subtracted should be 12/5. So this is the answer. So 12/5 to be subtracted from -3/5 to get -3. Let's take another question, verification question. You have to verify the following. First part, -3/4 into 17/8 into
माइनस 1/2 इक्वल टू -1/2 इंटू -3/4 इंटू 17/8। ये एक्सप्रेशन आपको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। पहले देख लेते हैं कोई फैक्टर रिड्यूस हो रहा है क्या नहीं। कोई फैक्टर रिड्यूस नहीं हो रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ऊपर क्या आया न्यूमरेटर में 3 इंटू 17 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 8 इंटू 2। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 3 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 8। 17 into 3 is 51, 8 into 4 is 32, 32 into 2 is 64. 17 3s are 51, 8 4s are 32, 2s are 64. Left hand side equal to right hand side, proved. Let's take another part, part number 2. एक एडिशन वाला लेते हैं। 2/-9 2 divided by -9 plus -3/5 plus 1/3 equal to -3/5 plus 2 divided by -9 plus 1/3। पहले माइनस को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैं उसको न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ। तो 2/-9 को मैं लिख सकता हूँ -2/9। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 3/5 प्लस 1/3 -3/5 प्लस 2/-9 को क्या लिखा, -2/9 प्लस 1/3। 5, 3 और 9 का एलसीएम लेता हूं कंबाइंड, क्या आएगा 45। 45 एलसीएम आया। 45 डिवाइडेड बाई 9 इज 5, 5 इंटू -2 इज -10। 45/5 is 9, 9 3s are 27 plus 45/3 is 15, 15 into 1 is 15। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 45। 45/5 is 9, 9 into -3 is -27 minus 45/9 is 5, 5 2s are 10 plus 15। -27 -10 कितना होगा, -37 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू -37 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45। -37 प्लस 15 इज -22, 7 - 5 2, 3 - 1 2 along with negative sign divided by 45 -22 divided by 45 proved। In this question we have if x equal to -1/3 and y equal to -2/5, prove that first part x plus y, absolute value of x plus y equal to absolute value of x plus absolute value of y। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू -1/3 गिवन है, y -2/5। हमें प्रूव करना है x प्लस वाई। पहले x प्लस वाई का सम निकालेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको प्लस बना देगा, इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/3 प्लस -2/5। x की जगह -1/3 पुट किया प्लस एज इट इज, y की जगह -2/5। -1/3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -2/5। एलसीएम लिया 5 और 3 का 15। 15/3 5, 5 इंटू -1 इज
-5 minus 15/5 is 3, 3 2 का 6, तो विच इज इक्वल टू -11/15 की एब्सोल्यूट वैल्यू। -5 -6 क्या हो गया, -11 डिवाइडेड बाई 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, प्लस, सो आंसर इज 11/15। लेफ्ट हैंड साइड हमारी 11/15 आ गई। नाउ राइट हैंड साइड, absolute value of x plus absolute value of y, -1/3 absolute value plus -2/5 absolute value। अब यहाँ पे absolute value -1/3 की क्या होगी, 1/3, और -2/5 की absolute value क्या होगी, 2/5। LCM क्या लिया, 15, 5 plus 6 which is equal to 11/15। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी अगर नेगेटिव नंबर की है वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर नेगेटिव में आया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो क्या हो गया, +11/15। आरएचएस में पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ली, -1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3, -2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5, फिर सॉल्व करा एक्सप्रेशन को तो 11/15 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिए, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। एक्सप्रेशन सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये आप होमवर्क कर लीजिए। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 6 rational numbers between 3/8 and -1/2। हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 3/8 एंड -1/2। मैंने आपको कहा था कि रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए पहले डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। तो 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है, ये तो ऑलरेडी 8 है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। -1/2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4/4, -1/2 इंटू 4/4, डिनोमिनेटर 8 बन जाएगा, सेम बन जाएगा, विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 8। Now I have one number -4/8, another number is 3/8। डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो लिख दो, वो आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर। सो 6 रैशनल नंबर्स आर -3/8, -2/8, -1/8, 0/8, 1/8 एंड 2/8। ये आपके 6 रैशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। These are the 6 rational numbers between these two numbers. Let's take one more question. Question number 7. Let's take another question. Write down by what number should we multiply, by what number should we multiply -1/6 so that the product may be -23/9। मैं कौन से नंबर से -1/6 को मल्टीप्लाई करूं सो डैट उनका प्रोडक्ट -23/9 आए। तो लेट
द नंबर, लेट द नंबर बी x, मैंने नंबर माना x जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/6 को अगर x से मैंने मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाइड बाय -1/6, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6, x से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -23/9, तो -1/6 इंटू x इक्वल टू -23/9, तो x क्या होगा -23/9 डिवाइडेड बाय -1/6, ये मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू क्या होगा -23/9, ये उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -23/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 6 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 2 का 3 3 का, सो x क्या आया 23 इंटू 2 इज 46 डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर आपका 46/3 हो गया। 46/3 इज द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -23/9। एक बड़ा छोटा एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द multiplicative inverse of 0, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था क्या होता है, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का। नाउ अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मेरे पास नंबर 0 है, 0, अगर मैं 0 के नीचे क्या होता है हमेशा 1 होता है, अगर एक नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो क्या आएगा 1/0। 1/0 हम सबको पता है मैथमेटिक्स में कोई डिफाइन ही नहीं होता, जब भी डिनोमिनेटर 0, मैंने बोला था कि किसी भी रैशनल नंबर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडियली 1/0 होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में कभी 0 आ नहीं सकता, सो आंसर शुड बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, सो आंसर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज मैच द फॉलोइंग। ये कुछ नंबर लाइंस दी हुई है चार पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 1 नंबर लाइन, 2nd नंबर लाइन, 3rd नंबर लाइन, 4th नंबर लाइन। यहाँ पे जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इसका नंबर बताना है कि रैशनल नंबर क्या आएगा इस नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ कॉलम बी में आंसर दिए हैं P Q R S, 12/5 है, 3/5, 3 से 2/3, 2/7। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो पार्ट वाइज करते हैं, जो रूल बताया था उसी रूल को फॉलो करेंगे, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और यहाँ से आंसर मैच हो जाएगा। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 कंप्लीट पार्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तो पक्का आएगा क्योंकि 3 कंप्लीट पार्ट्स आ गए। अब 3 और 4 के बीच में इक्वल डिविजन्स देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 डिविजन्स हैं टोटल, 3 तो कंप्लीट पार्ट आ गए और कितने डिवीजन आ रहे हैं 1 2 3 डिवीजन है। कौन से डिवीजन पे आ रहा है 2nd डिवीजन पे, सो व्हाट विल बी आंसर 3 से 2/3, ऐसा कोई ऑप्शन है, आर ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा आर, 3 से 2/3। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 कंप्लीट पार्ट आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। 3 और 4 के बीच में मेरे पास 3 डिवीजन है 1 2 3, कौन सा डिवीजन चाहिए 2nd, सो 3 से 2/3 2nd डिवीजन है, टोटल 3 डिवीजन है तो 2/3 फ्रैक्शन हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तो 3 से 2/3 ये आंसर आ गया आपका आर। 2nd पे चलते हैं, 0 और 1 के बीच में टोटल डिविजन्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिविजन है, कौन सा डिवीजन आ रहा है 2nd, तो आंसर क्या आना चाहिए 2/7, एस ऑप्शन।
तो इसका आंसर क्या होगा S। यहाँ पे कोई भी कंप्लीट पार्ट नहीं आ रहे तो खाली ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई कंप्लीट पार्ट में आंसर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 0 1 2, 2 तो कंप्लीट पार्ट आ गए, तो 2 तो कंप्लीट पार्ट लिख दिया हमने। अब 2 से 3 के बीच में डिविजन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, जो लास्ट डिवीजन है वो भी काउंट होता है, 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर में तो पक्का 5 आएगा। कौन सा डिवीजन चाहिए, सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया 2 से 2/5। अब 2 से 2/5 कोई ऑप्शन तो है नहीं, हमारा R ऑप्शन हो गया, S ऑप्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर उसमें फ्रैक्शन में कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 2 10, 10 + 2 = 12/5, ऑप्शन P आ गया, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन P। तो पक्का इसका ऑप्शन Q आएगा। कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन है, 1 2 3 4 5 डिविजन है। कौन से डिवीजन पे आ रहा है, 1 2 3 पे, तो आंसर क्या हुआ 3/5, विच इज ऑप्शन Q। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। नाउ दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इस पे बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। So after this lecture you can practice those questions, answers are also given at the end so that you can match your answers। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। थैंक यू सो मच।